જય જિનેન્દ્રજી. મજામાં? બોલો બોલો. ઓમ જય 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 નમોસ્તુ નમોસ્તુ નમો યંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્રાણમ નમો લોહિત ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનો કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણ મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણકારકમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતુ શાસનમ જૈનમ જયતુ શાસનમ. ચલો હવે આપણે છે ને મેં તમારું રેકોર્ડિંગ સાંભળ્યું ગયા વખતનું, એટલે હું જયારે નહોતો ને શરૂઆતમાં અડધી પોણી કલાક નહોતો ત્યારે તમે લોકો જે વાત કરી ને નય ચક્ર વિશે, એટલે એમાં ગભરાવા જેવું નથી એકચ્યુઅલી. એટલે છે ને અમુક વસ્તુ સમજવા જેવી છે. આપણે એને મારો વિચાર શું છે કે આજે આપણે નય ચક્રની થોડી વાત કરી એકદમ ટૂંકાણમાં, પછી છે ને બીજો કોઈ આપણે ટોપિક પર છે નવા ટોપિક પર. એ પહેલા મેં આમનું પ્રવચન સાંભળ્યું સંજીવ ગોધાનું, કે મરણ સમયે જ્ઞાનીનું ચિંતન કેવું હોય. એનું 50-52 મિનિટનું લેક્ચર છે, સરસ છે. તો આપણે એ પહેલા સાંભળી લે, પછી કોઈ નવા ટોપિક પર જશું આપણે. એટલે તું મને હવે allow me to share. યા શેર કરી દીધું, શેર કરી દીધું. ઓકે. જો આ દેવસન આચાર્ય કૃત નય ચક્રના પાના 31-32 નો અનુવાદ ગુજરાતીમાં. બરાબર દેખાય છે ને? દેખાય છે? બરાબર. હા, ચોખ્ખું દેખાય છે. હા, ઓકે. નિશ્ચય નહીં તો ઉપનય થી રહિત છે. તમે ઉપનય એટલે શું? ઉપનય એની સાથે જોડાયેલું હોય. હે? એની સાથે જોડાયેલું હોય એટલે કઈક નિશ્ચય નહીં કહો તો બીજાની અપેક્ષા રાખતું. ઓકે. ઉપનય એટલે વ્યવહાર. આપણે કહેવાય ને નગર અને ઉપનગર કહીએ ને આપણે, પાર્લા અને અંધેરી ને બધું ઉપનગર કહેવાય ને. નગર તો નિશ્ચયની સાથે કોણ રહેતું હોય તો કે વ્યવહાર. એટલે એને ઉપનય કીધું છે, ઉપનય. ઓકે. નિશ્ચય નહીં તો ઉપનય થી રહી છે. એટલે છે ને હવે આ જે પાનું 31-32 છે ને, એટલે 31-32 છે એટલે ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ એ બિગ ચેપ્ટર. આગળ જે નિશ્ચયની વાત કરી હોય ને એને આગળ વધારે છે. આગલા પાનાઓ પર નિશ્ચયની જે વાત કરે છે ને, તો લખે છે નિશ્ચય નહીં તો. નહીં તો જો આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લેખ હોત તો લખવાની જરૂર નહોતી. નિશ્ચય નહીં આગળ જે વાત કરી ને એની વધારે કન્ટિન્યુએશન માં લખે છે. તો નિશ્ચય નહીં તો ઉપનય થી રહી છે. એટલે નિશ્ચયની અંદર એક મિનિટ. Sorry, I'm in the meeting. Everything they went okay? Okay. How much? Yeah. Okay. Yeah, okay. I'm in the meeting now. Okay. All right. I'll call you. Okay. All right. I'll call you till later. Okay. Thanks. તો નિશ્ચયનો ઉપનયથી એટલે છે ને કે નિશ્ચયને કોને કહેવાય? તો એની એક વ્યાખ્યા એમ પણ થઈ શકે કે જેમાં વ્યવહાર નહીં ના હોય એ નિશ્ચય નહીં. એક વ્યાખ્યા એમ પણ થાય. આગળ વ્યાખ્યા આવશે, અત્યારે અભેદનો ઉપચારની. પણ નિશ્ચય નહીં ઉપનયથી રહિત છે. તો આમાં સમજવાનું શું છે કે નિશ્ચય નહીં તો ઉપનયથી સર્વથા રહિત છે. કહેવાનો મતલબ અહીંયા છે સર્વથા. અમુક રીતે નવી, અમુક રીતે રહિત છે, અમુક રીતે સહિત છે એવું નથી. નિશ્ચય નહીં એમ લખ્યું હોત કે વ્યવહાર નહીંથી સદાય રહિત છે તો સમજી. ઉપનયની બદલે વ્યવહાર નહીં લખ્યું હતો. એમાં નહીં. જો એમાં એવી ચિંતા નહીં કરવાની. જે એમણે વાચા કરી હોય ને એનો બરાબર છે. બરાબર.
પણ when you're ઉપનય translating, you ઉપનય can. એટલે જેની સાથે રહે એમને કહેવા માંગે છે. એ હા, શબ્દ હા, હા. વાપર્યો ઉપનય, તો એ કહેવા હા, હા. માંગે છે કે નિશ્ચયને હંમેશા વ્યવહારની સાથે હોય. એટલે ટૂંકમાં શું કહેવા માંગે છે કે વ્યવહાર કીધો તો એ તો બરાબર છે, એનો શબ્દ બરાબર છે, પણ એવો વ્યવહાર ના હોય કે નિશ્ચયની સાથે ન હોય. આપણે ઘણી વાર કહીએ ને કે આ તો હું વ્યવહારથી આમ કહું છું, તો ઉપનય છે તો એ વ્યવહાર નિશ્ચયની સાથે છે કે નહીં, તો એ ખરેખર વ્યવહારનું નામ પાડે, તો એનું નામ પડે. એટલે ઉપનયનો કહેવાનો મતલબ છે એની અંદર શું ફરી વાર કે નિશ્ચય નહીં હોય, નિશ્ચય નહીં ન હોય. હા, હા. અને આપણે ઘણી વાર કહીએ હું તો વ્યવહારથી કહું છું આ રીતે, હા, 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 હા. એ ખરેખર વ્યવહાર નહીં નથી. હા, હા, હા. નિશ્ચયની સાથે હોવો જોઈએ. હા, 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 હા. પાર્લા અને અંધેરી ઉપનગર છે હા. કારણ કે મુંબઈનું નગર છે પહેલા. હા, હા, હા. હું એમ કહું કે મુંબઈ નથી સમજો, અને હું પાર્લાને ન ઉપનગર કહું તો કેમ ચાલે? ના. હા, તો એટલે ઉપનય કીધો છે એને ઉપનગર છે, તો કોઈ એવું નગર સાથે હોવું જોઈએ ને, હા, હા, માટે એને ઉપનય કીધો છે. હા, હા, હા. ઉપનય કહેવાનો મતલબ છે એની પાછળ. હા. ઓકે, તો નિશ્ચયને તો એટલે ઉપનયથી એ રહી જ છે. કોને રિલેટેડ છે એમ? હા, એટલે જો હું કેમ કહું કે મારી પાસે આ નિશ્ચયથી હું આમ કહું, વ્યવહારથી હું આમ કહું છું, એનો પણ મારી પાસે નિશ્ચય નથી. હું વ્યવહારથી હું વ્રત તપ કરું છું, તો એ વ્યવહાર નહીંથી મને લાભ થાય ને વ્યવહાર, એટલે હું વ્યવહારથી વ્રત તપ કરું છું, પણ મારી પાસે નિશ્ચય ક્યાં છે? હા, હા. નિશ્ચયથી મને સંવેદન તો થયું નથી, તો એ Correct. વ્યવહાર નહીં ના કહેવાય એમ. એટલે વ્યવહાર નહીં નિશ્ચય નહીં પહેલા હોવો જોઈએ, એની સાથે જે રાગ બાકી રહે એને વ્યવહાર કહેવાય. તો નિશ્ચય નહીં તો સર્વથા ઉપનયથી સર્વથા રહિત છે, એટલે એની અધ્યાર છે સર્વથા. એટલે એ કહેવાનું જ આ મતલબ છે. આગે 2 પાના છે, એમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે નિશ્ચય નહીં અને વ્યવહાર નહીં, તો એમાં વ્યવહાર નહીં સર્વથા રહિત છે એમ કેવું છે. હવે જો પછી હવે નિશ્ચયનીનો વ્યાખ્યા કરે છે. અભેદ અને અનુપચાર જેનું લક્ષણ છે અને જે અર્થનો નિશ્ચય કરાવે છે. એટલે 2 વસ્તુ કીધી આપણે, અભેદ અને અનુપચાર. તો અભેદ કોને કહેવાય? કે આપણે સમયસારમાં એકત્વ વિભક્ત આત્મા કેવો છે ને, હા. એકત્વ વિભક્ત આત્માને જે બતાવે એ નિશ્ચય નહીં, એવો નિશ્ચય નહીં. અને અનંત ગુણોમાં એક પણ હોય, એમાં ગુણભેદ ના હોય, એવા ભેદથી જ આપણે આત્માને જાણતા હોઈએ, એ ભેદ બધા એમાં જેમાં સમાહિત થઈ ગયા હોય, એમાં વિલીન થઈ ગયા હોય, એવો અભેદ. એટલે એ ભેદ પર તો ડિપેન્ડ થાય છે. ભેદ તો છે, પણ હવે આપણે એને ભેદ પર દ્રષ્ટિ રાખવાને બદલે અભેદમાં જવાનું છે. એટલે આટલા 2 પાનાનો સવાલ એ છે કે હવે આપણે જે વ્યવહારથી જે આત્માને જાણનારો છે એને હવે આપણે નિશ્ચયથી જાણવાનો છે, એટલે નિશ્ચયથી એને અનુભવવાનો છે. તો અભેદ અને અનુપચાર. અનુપચાર આપણે વાત કરીએ ને કે ઘીનો ઘડો કહીએ આપણે અને માટીનો ઘડો કહીએ, ત્યાં ફરક પડે ને. અનુપચારથી આપણે એને ઘીનો ઘડો કહીએ, પણ ખરેખર તો એ માટીનો ઘડો છે. એટલે અનુપચાર કે જેમાં ખોટું, એટલે કે આપણે પર્યાવાળા આત્માને આપણે આત્મા કહીએ, ઉત્પાદ ભાઈ ધ્રુવ વાળાને આપણે આત્મા કહીએ, તો અધ્યાત્મ એ ખોટું છે. હવે આપણે અધ્યાત્મમાં આવ્યા છીએ ને, તો હવે જે પ્રમત્ત અપ્રમત્ત રહિત આત્માને આપણે આત્મા કહેવાનો છે. પ્રમત્ત રહિત આપણે તો એટલે ગુણસ્થાન વાળો આત્મા હોય, જીવસ્થાન વાળો આત્મા હોય. આપણે કહીએ ને કે હું રાગી આત્મા છું, હું આ જાતનો આત્મા છું એમ કહીએ આપણે, તો એ બધું ખોટું છે. ખોટું, રાઈટ. પર્યાયથી આપણે આત્માને ઓળખાવીએ છીએ. હા, તો એ નિશ્ચયનું કથન નથી. તો અનુપચારથી કીધું આપણે કે રાગી આત્મા, પણ રાગી આત્મા નથી હોતો. એટલે અનુપચાર જેનો નિશ્ચય છે એ નિશ્ચય એ નિશ્ચયની છે. અને જે અર્થ એટલે શું? અર્થ એટલે પરમાર્થ, દ્રષ્ટિનો વિષય, એ નિશ્ચય નહીં કહેવાય. તો જે પરમાત્મા જે નિશ્ચય કરે આપણને બતાવે, અને અભેદ અને અનુપચાર જેનું લક્ષણ છે, તો એ નિશ્ચય નહીં કહેવાય, બાકી કોઈ નિશ્ચય નહીં કહેવાય. હવે શું છે કે સ્યાદપત્તિ રહિત હોવા છતાં, એટલે નિશ્ચયને એમ નથી કહેતો કે આત્મા શુદ્ધ પણ છે અને અશુદ્ધ પણ છે. સંસાર અવસ્થામાં અશુદ્ધ છે, સિદ્ધ અવસ્થામાં શુદ્ધ છે, એમ નિશ્ચયને નથી કહેતો. સંસાર અવસ્થામાં પણ આત્મા શુદ્ધ જ છે. એટલે સ્યાદ પદ નથી એની અંદર. જો સ્યાદ હોત તો એમ કહે કે આત્મા અમુક અપેક્ષાએ શુદ્ધ છે, અમુક અપેક્ષાએ અશુદ્ધ છે, તો આમ બેલેન્સ લાગે ને, બરાબર કે બરાબર છે.
અમુક ઉપાય છે, તો નિશ્ચયનું એ કામ નથી. એ કામ તો પ્રમાણનું છે. નિશ્ચયને તો એમ જ કહે છે કે આત્મા શુદ્ધ જ છે, કારણ કે એમાં ઉપનયનો અભાવ છે, વ્યવહારની એમાં અભાવ છે. વ્યવહારની ભલે કે આત્મામાં અશુદ્ધિ છે, પણ નિશ્ચયની આપણે વાત કરીએ ત્યારે એમાં એમાં વ્યવહારની નથી, એટલે આત્મા શુદ્ધ જ છે. એટલે સ્યાદપદથી રહિત છે. તો શું છે કે કોઈ આપણે જેમ સાંખ્ય લોકો ને બધા લોકો કહે છે ને કે આત્મા શુદ્ધ જ છે, અને એમાં લોકોમાં સ્યાદપદ નથી આવતું, અને એ લોકો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. તો અહીંયા તો શું કહે છે કે નિશ્ચયની અંદર વ્યવહારનો સર્વથા અભાવ હોવાને લીધે સ્યાદપદ નથી, તેમ છતાં નિશ્ચયાભાસ થતું નથી. એટલે હવે હોડીમાં સામે પહોંચી ગયા છે. હવે હોડીને પાછળ મૂકી દેવાની છે અને જસ્ટ ટોક અબાઉટ ધ નિશ્ચય. એટલે હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ ને, એટલે પહોંચી નહોતા ગયા ને, હા જયારે આપણા પોતાના પાલામાં હતા ત્યારે પણ આત્મા તો શુદ્ધ જ હતો. શુદ્ધ તો રાઈટ રાઈટ રાઈટ. આત્મા Okay. આપણે નદી પાર કરીને ઓલી બાજુ ગયા હા. અને શુદ્ધ થયો એમ નથી. એવું નથી, ના, એ તો બરાબર છે. શુદ્ધ નદીમાં હતો બેઠા પહેલા એટલે ત્યારથી ઓળખો જ એ આપણે. શુદ્ધ હતો. શુદ્ધ ત્યારથી હતો જ એને શુદ્ધ હતો. ઓળખો, હા એને અનુભવ્યો. હા, એટલે ત્યારથી જયારે આત્મા અશુદ્ધ હતો અને જયારે આપણે આત્માને જાણવાની ચાલુ કરી ત્યારથી પણ આત્મા તો શુદ્ધ જ છે, હા, અશુદ્ધતા એનામાં નહોતી. એમાં નથી. એટલે દ્રવ્યમાં. સ્યાદપદ નથી એનામાં, તો હા, પણ એ નિશ્ચયાભાસ થતું નથી. એટલે જે એમ કેવું ખોટું નથી. એટલે કે આપણે અજ્ઞાન દશામાં હોઈએ, અશુદ્ધ દશામાં હોઈએ, ત્યારે એમ કેવું કે આત્મા શુદ્ધ છે, તો એમાં નિશ્ચયાભાસ થતું નથી, એ બરાબર છે. અચ્છા, બરાબર છે. પણ એમાં અશુદ્ધ તો હોવા છતાં પણ શુદ્ધતા છે, એ બરાબર છે, એમ કેવું બરાબર છે, એમ કે છે. બરાબર. એટલે સ્યાદપદ નથી તો પણ એનામાં નિશ્ચયાભાસ થતું નથી, કારણ કે તે ઉપનયથી, અને હું ઉમેરું છું, સર્વથા રહિત છે. હા, જો સર્વથા રહિત ન હોય તો કે અમુક અપેક્ષાએ છે ને અમુક અપેક્ષાએ નથી, એમ થાય ને. હા, આપણે સર્વથા આપણે સમજવા માટે ઉમેરીએ છીએ કે જે વ્યવહાર નિશ્ચય નહીં છે એ ઉપનયથી સર્વથા રહિત છે. હવે જે આવે પેરેગ્રાફ આવે છે ને, એક મહિનામાં નવ તત્વ. હા, એટલે જો નવ તત્વ વાળો આત્મા, નવ તત્વ વાળો આત્મા એ આપણે દ્રષ્ટિનો વિષય છે. ના, આપણે નવ તત્વ સમજાવ્યા બધી ગાથાઓમાં. હા, તો એ નથી. એટલે લાજમી આમ સાથે દાખલો આપે કે મોસંબીનો દાખલો આપે. મોસંબી, હા, એમાં રસ છે, એ આપણું મેઇન આપણું ધ્યેય છે ને. હા, તો એમાંથી ઓલા એનો છાલ અને એના કૂચા ને બધું કાઢી નાખવું પડે ને. રાઈટ રાઈટ. હા, તો એટલે એ રીતે છે. તો જ્યાં નવ તત્વ જે છે એમાં જે બધા તત્વો છે બધા એ બધા કૂચા જેવા છે અને છાલ જેવા છે. હા, આપણે તો રસ જોઈએ છે ને. હા, એટલે જે નવ તત્વમાં જે એકત્વ આપણને જે પરિણામે આત્મા એ આપણે રસ કહીએ ને એને, તો આપણે તો એ રસ ચૂસવો છે ને. હા, હા, એટલે નવ તત્વ વાળો આત્મા એ આપણું દ્રષ્ટિનો વિષય નથી. એમાંથી જે રસ કાઢીએ છીએ એ આપણો દ્રષ્ટિનો વિષય છે, એમ. એટલે ઉપનયના અભાવમાં સ્યાદપદનો અભાવ કેવી રીતે થાય છે? હવે જે એ બધી વાત જે કરી છે ને એ આપણે એ રીતે જવાનું ખાલી જવાનું કે સ્યાદપદની પ્રધાનતાથી ઉપનયનો વ્યવહારજનક છે. એટલે સ્યાદપદ હોય ને, જ્યારે સ્યાદપદ આવે તેમાં આ અમુક અપેક્ષાએ આમ અને અમુક અપેક્ષાએ આમ, એમ થાય ને આપણે. બરાબર. યા, કરેક્ટ. તો એ સ્યાદપદ નથી, પણ તેમ છતાં તે, એટલે સ્યાદપદ હોય તો વ્યવહારનો જનક થાય ને. સ્યાદપદ લગાડીએ તો તો હા, કે આ રીતે આમ છે ને આ રીતે આમ છે, આ રીતે આમ છે ને આ હા, રીતે આમ છે, એમ થાય ને. એ નથી નિશ્ચય નહીંમાં. એટલે જ્યારે નિશ્ચય નહીં દ્વારા ઉપનયનો પ્રલય કરાવી દેવામાં આવે છે ત્યારે એક નિશ્ચયને જ પ્રકાશિત થાય છે. એટલે સ્યાદપદને આપણે ગૌણ કરી નાખીએ, સ્યાદપદને આપણે જોઈએ જ નહીં, એટલે કે વ્યવહારને જોઈએ, કારણ કે એનો સર્વથા અભાવ છે. ત્યારે આપણે નિશ્ચયનો પ્રકાશ થાય છે. એટલે વ્યવહારનો પ્રલય કરે છે. વ્યવહાર જે કહે છે એનો પ્રલય કરે છે, ત્યારે આપણે નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે આપણે કરવાનું એ છે, આપણે કહીએ છીએ કે અમે માનીએ છીએ, છઠ્ઠી ગાથા માનીએ છીએ, ગુરુદેવનું માનીએ છીએ કે આત્મા ભગવાન આત્મા છે, આપણે એને પર્યાવાળો જ જોઈએ છીએ. આપણે નિશ્ચયનો પ્રલય નથી કર્યો, અને આપણે આત્મા જોઈએ છે, પણ એ આત્મા પ્રલય, વ્યવહારનો પ્રલય, એટલે આત્મામાં પર્યાય છે એ વ્યવહાર છે, તો એનો આપણે પ્રલય કરતા નથી. આપણે શુદ્ધ થવું છે, કે આપણે શુદ્ધ કેવી થઈ જઈએ તો આપણી બધી આપણા ક્રોધ ને માન ને માયા જતા રહે તો આપણે શુદ્ધ થશું અને પછી આપણને મોક્ષ મળશે, એ બી આપણી માન્યતા હોય ને બધાની.
એ બધાની. અત્યારે હું અશુદ્ધ છું, એ બધા મારા હું ધીમે ધીમે મારા કષાય ને બધા હું ઓછા કરી નાખીશ, એમ કરતા કરતા શુદ્ધ થઈને હું સિદ્ધ થઈશ. એ ખોટી માન્યતા છે. એ કષાય મારા છે જ નહીં અત્યારે, અત્યારે પણ નથી. એમ Right. કે પછી બધી વાત કરી છે કે એટલે ટૂંકમાં આ રીતે આપણે જોવાનું છે. આપણે ગભરાઈ જવાનું નથી એમ ટૂંકમાં. હા 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 બીજા અમુક આજે કર્યા નથી મેં પેરેગ્રાફમાં. ઓકે, અત્યારે સ્યાત્પદ અત્યારે આત્મામાં સ્યાત્પદ એટલે શું છે કે જે આત્મામાં અત્યારે આપણે સ્યાત્પદ નો આપણે શોધવા જોઈએ છે ને, ત્યારે ખરેખર આત્મામાં સ્યાત્પદ નથી. વ્યવહારનો એમાં સર્વથા અભાવ છે. એટલે નિશ્ચયથી જોનારાને સ્યાત્પદ એને લાગુ પડતું નથી એને. એટલે હવે કે રજની, we only know all this, we just want દર્શન જ્ઞાન ગુણ કેવી રીતે કામ કરે છે ને બધી દશામાં એના વિશે વધારે એક્સપ્લેનેશન હોય દી. દર્શન જ્ઞાન જો હવે આપણે કહીએ દર્શન જ્ઞાન ગુણની વાત કરીએ ને, તો નિશ્ચયમાં દર્શન જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર યા જ્ઞાન બધા જે ગુણો છે ને બધા, હા હવે એ ગુણભેદ નથી આત્મામાં. નથી, આ ગુણભેદ નથી, એ વાત બી સાચી. હવે હા, એટલે ગુણ- એવો અનુભવ હશે. ઓકે, બીજામાં જો અચ્છા હા બધા બીજી એક જ મેઇન વાત નિશ્ચયની, જ્યાં સુધી આપણી દ્રષ્ટિ પ્રમાણના આત્મામાં છે ને, તો પ્રમાણના આમાં નથી આત્મામાં હે, આમાં બોલો. નથી આવતું. શું કીધું? શું અમારે મંજુભાઈ શું નથી આવતું? સ્ક્રીન પર હા, તમે ઓહ. બોલો છો એ સ્ક્રીન પર નથી આવતું. ઓકે, બીજું આવે છે. હાજી. ના ના, હું બોલું છું તો આમ વાંચતો નથી કઈ. અરે વાત તો નથી, જસ્ટ આમાંથી જસ્ટ વાંચતો બોલે નથી, છે. આપણે વાત જ કરીએ છીએ. એને સવાલ અચ્છા. પૂછ્યો ને પછી દર્શન જ્ઞાન ગુણની એની હા. જવાબ. અચ્છા અચ્છા. ના એટલે શું છે, જો અહીંયા બીજું કહેવાનું શું છે અહીંયા કે વિધિ નિષેધ હોય ને, વિધિ નિષેધ, એ વિધિ નિષેધ વગર આત્મા પ્રાપ્ત ન થાય. હા. એટલે તો વિધિ અને નિષેધ, વિધિ એટલે આપણે કહે ને એફર્મેટિવ, નિષેધ એટલે નેગેટિવ. આપણે કહે ને કે આપણે કે પોઝિટિવ થિંકિંગ કરો અને નેગેટિવ થિંકિંગ નહીં કરો, એમ તો આપણે કહે ને. તો હા, હા. વિધિ એટલે એમાં વિધિમાં કંઈક એમ. કરવાનું હોય ને નિષેધમાં ન કરવાનું હોય. હા, રાઈટ. હા. તો જો પ્રમાણની અંદર છે ને, પ્રમાણમાં વિધિ નિષેધ નથી. પ્રમાણ તો એ કે છે આમ પણ છે ને આમ પણ છે. એટલે આજે પૂજ્યતમની વાત આવેલી ને નીચે છેલ્લે, હા પ્રમાણ કેમ પૂજ્ય નથી અને નિશ્ચયને કેમ પૂજ્ય છે, અને ઓલો વ્યવહારની જે બતાવે છે કે આ જ્ઞાન તે આત્મા એ પૂજ્યતર છે. તો એનું એક્સપ્લેનેશન એ છે કે એ બધામાં વિધિ નિષેધ નથી, ખાલી નિશ્ચયમાં જ વિધિ નિષેધ છે. એટલે કે આમ કરવું ને બીજી રીતે નહીં કરવું એમ. એટલે ટૂંકમાં શુદ્ધ પણ છે ને અશુદ્ધ પણ છે એવું નથી આત્મામાં. આત્મા શુદ્ધ જ છે એમ માનવાનું. એટલે એમ જ આપણે જાણવાનું છે ને માનવાનું છે. એટલે એવી બધી વાતો છે આની અંદર. એટલે કોઈ ગભરાઈ જવાની જરૂર નથી ટૂંકમાં એમ. બરાબર છે? બીજું કઈ કરવું છે, વાત કરવી છે આમ એ છે? એ તો પછી છે ને આપણે જઈએ સંજીવ ગોધામાં. હા બસ. ઓકે. હા, લઈ લઈએ બરાબર છે? પ્રવચન. ઓકે. ધ્યાનનું છે આ. આજે છે ને એક મિનિટ, સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉજ્જાયાણમ નમો લોએ સવ્યસાહુણમ. આ જે મંદિર છે ને, હા એ હા આ જ મંદિરમાં પંડિત ટોડરમલજી પ્રવચન આપતા હતા. હા. આ જ જગ્યાએ બેસે. આ જયપુરનું છે. આ જયપુરનું છે. અને આ જ મંદિર પર આપણે ઘણા પ્રવચન કર્યા છે, નરસિંહપુર ચિઠ્ઠી પર ને બધાના. એટલે હા. સંદીપ ગોદીના ઘણા પ્રવચનો અહીંથી હોય છે. એટલે આ એ જૂનું મંદિર છે જેમાં ટોડરમલજી આવતા હતા. ઓ પછી એના દીકરા બી આવતા હશે. તો આજે જે કરે છે ને, એમના હા દીકરા ગુમાનીરામ હતા. ગુમાનીરામ હા હા હા. શાસ્ત્રોનું નામ નથી આપ્યું. એમાં એક ચેપ્ટર છે આ સમાધિ મરણની ભાવના. એટલે ઓ જ્ઞાનીની અચ્છા જ્ઞાનીનો કઈ જાતનો સ્વરૂપનું ચિંતન હોય, અચ્છા અચ્છા. એના ઉપર આ 52 મિનિટનું છે. ઓકે. અને ધીસ ઇઝ એ રીતે હિસ્ટોરિક છે.
કે હા 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 એ જગ્યાએ બેસીને આપે છે. બેકગ્રાઉન્ડ હિસ્ટોરિક છે. હા, એમને કંઈક રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી ઉપર કંઈક 45 જેટલા પ્રવચન આપેલા ઓહો અહીંયા જ બેસીને રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી પર. ઓકે. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित प्रवर गुमानी राम जी द्वारा लिखित यह समाधि मरण के स्वरूप वाला प्रकरण है। हम सबकी भावनाएं हैं और हम सबकी ही क्यों प्रत्येक आत्मार्थी की भावना होती है, होनी भी चाहिए कि कम से कम अंत तो भला हो, हैप्पी एंडिंग जिसे कहते हैं ना, भारतीय परंपरा हैप्पी एंडिंग वाली है। हमारे यहाँ कोई भी कहानी हो, कोई भी स्टोरी हो, वो अंत में जाकर के अच्छे पर जाकर के ही खत्म होती है। नियम है ऐसा। पूरी पिक्चर में आपके कितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, पूरी पिक्चर में कितने भी संकट आ रहे हों, कितनी भी परेशानियां आ रही हों, कितनी भी आफत झेल रहे हों, लेकिन अंत में वो परिवार एक हो जाता है, मिल जाता है, जुड़ जाते हैं, सबके चेहरे खिल जाते हैं। यही अंत होता है। और यहाँ भी हमारी जो कहानी जो छेड़ाला के अंदर जो बतलाई गई और जो चल रही है, उसमें सिद्ध अवस्था तक ले गए, अंत भला। अभी कह रहे हैं वर्तमान में सिद्ध अवस्था तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, वर्तमान अवस्था में इस भाव में तो कोई बात नहीं। इस भाव में भले ही सिद्ध अवस्था तक की प्राप्ति ना होवे तो भी तथापि इस जीवन के अंत समय में यदि भला है तो फिर सब भला है। और जीवन का जो अंत समय है, उस जीवन के अंत समय में भला है कि नहीं है, इस बात का निर्णय कैसे होगा। बहुत सारे लोग तो पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए, इसमें भी भला कहते हैं। बहुत सारे लोग तो अंत समय में हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुए, इसको भी भला कहते हैं। चलते फिरते यदि चले गए तो उसे भी भला कहते हैं। दुनिया तो दुनिया है भाई, सब बातें करने वाली। लोग तो ऐसे ही हैं जो ये कहते हैं अरे नहीं नहीं साहब, अच्छा हुआ साहब, क्या हाथ पांव चल रहे थे, अंत समय तक किसी को तकलीफ नहीं दी, बिस्तर नहीं पकड़े, दुख नहीं पाए उन्होंने बिल्कुल भी, न खुद ने दुख पाए न दूसरों को दुख दिए। तो ऐसा लगता है भैया सुधर गई क्या। बहुत सारे लोग तो मरने मात्र को भी सुधरनी कहते हैं, सुधरना कहते हैं। मर गया माने सुधर गई। अरे साहब बहुत ही तकलीफ पा रहे थे, बहुत ही तकलीफ पा रहे थे, और क्या हुआ, अब मर गए तो चलो सुधर गई उनकी। अब सब तरह के लोग हैं, सुधरने के लिए अलग अलग प्रकार की बातें करने वाले। लेकिन यहाँ जो जिनागम कहता है, हमारी जो जिनवाणी कहती है, ये जिनवाणी के वचन कुछ अलग प्रकार के हैं। ये जिनवाणी की बातें कुछ अलग ही प्रकार की होती है, बड़ी अद्भुत बातें हैं यहाँ। बोले परिणाम यदि अच्छे हैं, भाव यदि अच्छे हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भाव सुधर सकता है, और भाव बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ गया। क्या इसका मतलब बिगड़ना और सुधरना, इसका निर्णय संयोग से नहीं है, और बिगड़ने और सुधरने का निर्णय अपने शरीर से नहीं है, बिगड़ने और सुधरने का निर्णय अपने भावों से है, विशुद्ध परिणामों से है। यहाँ प्रथम परिशिष्ट के रूप में गुमानी राम जी की जो ये पंक्तियाँ चल रही थी, उसमें बहुत प्रेरित किया, प्रेरणा दी, और ये कहा
कि भाई तू तो सिंह की तरह है, तू कमजोर नहीं है, तू बहुत पावरफुल है, तू एक दहाड़ मारेगा तो जितने पशु पक्षी हैं ये सब भाग जाएंगे अपनी जगह छोड़कर। तेरी आवाज सुनने मात्र से ये सारे पशु पक्षी भाग जाएंगे। इसी तरह से हे चेतन, यदि स्वभाव सन्मुखता की एक दहाड़ लगाएगा तो ये जितने कर्म प्रकृतियां हैं, इन कर्म प्रकृतियों में भूचाल आ जाएगा। ये कर्म प्रकृतियां छोड़ भागेंगी, इन कर्म प्रकृतियों की पावर कमजोर पड़ जाएगी, ये शिथिल पड़ जाएंगे, इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ बहुत अच्छे शब्दों में पंडित जी साहब ने कही। फिर कहा कि साहब इसके लिए जिस पावर की आप बात कर रहे हो वो पावर क्या चीज है, वो शक्ति क्या है, और ज्ञानी का स्वरूप चिंतन किस तरह का होता है उसे यहाँ बतला रहे हैं। देखिए सम्यक दृष्टि कैसा है, कैसा है माने सम्यक दृष्टि का स्वरूप चिंतन कैसा होता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ समाधिस्थ व्यक्ति का स्वरूप चिंतन कैसा है। समाधि में जो अपना काल बिता रहा है, समाधि में जिसका जीवन बीत रहा है, उस व्यक्ति का स्वरूप के संबंध में चिंतन कैसा होता है, वो अपने आप के बारे में क्या विचार करता है और क्या चिंतन करता है, ये धारा यहाँ बता रहे हैं। उसके हृदय में क्या होता है, छेद है। उसके हृदय में क्या, हृदय मतलब हार्ट, क्या अटैक आ रहा है क्या? उसके हृदय में क्या है, क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान चमकता हुआ त्रिकाली ध्रुव अपना आत्म तत्व स्वरूप दिखाई दे रहा है, चैतन्य दिखाई दे रहा है। चेतन अपनो रूप निहारो, क्या चेतन को कह रहे हैं अपने स्वरूप को निहारो, अपने स्वरूप को देखो। हृदय में कुछ दिखाई दे रहा है, मन में कुछ दिखाई दे रहा है, दिखता है, दिखेगा, क्योंकि हमारा मन शून्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूपी दर्पण में कुछ न कुछ झलकेगा ही झलकेगा, झलकन के बिना दर्पण नहीं होता, ऐसा स्वरूप है। मिरर लगा हो और आप ये कहें कि इसमें कुछ भी न झलके, ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ भी नहीं झलके, ये संभव ही नहीं है कि नहीं बंद कर दो इसको, कुछ नहीं दिखना चाहिए, इसमें शून्य हो जाना चाहिए, बोले ऐसा नहीं होता। कपड़ा लगा दो, अखबार से पैक कर दो इस दर्पण को कि कपड़ा लगाएंगे तो कपड़ा झलकेगा, अखबार लगा देंगे चारों तरफ लपेट देंगे तो अखबार झलकेगा। क्या समझ में आ रही है बात? इसी तरह से ज्ञान रूपी दर्पण में सिर्फ ज्ञान ही झलकता है। चैतन्य के दर्पण में और तन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है। ये कैसे समझाएं क्या है कौन वहां चैतन्य के दर्पण में, ज्ञान के अलावा और है कौन? उस ज्ञान भगवान आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है अंदर में। देखो तो सही, ज्ञान 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 मात्र दिखाई देता है, बस ज्ञान ही ज्ञान है, बस चैतन्य ही चैतन्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाहर की सारी भागदौड़, बाहर की सारी उठापटक कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कबूतर वृक्ष की शाख पर बैठा हुआ आने वाली आपदाओं को देखकर जब आंखें बंद कर लेता है तो उसे बाहर की आपदा कुछ भी दिखाई नहीं देती।
इसी तरह से बाहर से दृष्टि हटा लेने पर और अंदर में स्वरूप चिंतन कर लेने पर न हमें कर्म दिखाई देते हैं, न हमें विपत्तियां दिखाई देती है, न हमें किसी प्रकार की कोई आफत दिखाई देती है। सब संकट मानो चले गए, गायब हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं आत्म स्वरूप देदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। ये ज्ञानी का चिंतन है समाधि मरण के काल में। समाधि मरण के काल में यदि उसे आत्मा का स्वरूप प्रतिभासित हो रहा है, इसका मतलब समाधि मरण के काल में देह नहीं दिख रही है, इसका मतलब समाधि मरण के काल में रोग नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब समाधि मरण के काल में संकट नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब समाधि मरण के काल में बीमारियां, तकलीफ, शरीर की प्रतिकूलताएं नहीं दिखाई दे रही। यही तो है। क्या दिख रहा है समाधि मरण के काल में? यदि समाधिस्थ व्यक्ति को शरीर दिख रहा है और बीमारियां दिख रही है तो समाधि बिगड़ गई क्या? अभी यदि शरीर, बीमारियां, तकलीफ दिखाई दे रही है तो समाधि बिगड़ गई। और ये तकलीफ का वेदन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि और कुछ मिल गया है क्या? भाव मन ज्ञान की पर्याय वही हृदय है, ज्ञान की पर्याय है। हमारे वर्तमान मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय की चर्चा चल रही है। यहाँ देदीप्यमान चैतन्य स्वरूप प्रतिभासता है, झलकता है। ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, और जब ज्ञायक झलकता है तो मानो रत्न मिल गए हैं, निधि मिल गई है। वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। ओहो, क्या कह रहे हैं? वह ज्ञान ज्योति को, ज्ञान रूपी ज्योति को, ज्ञान रूपी चमक को, ज्ञान रूपी प्रकाश को लिए हुए आनंद रस से, माने वो ज्ञान आनंद रस से लबालब भरा हुआ है। ज्ञान सागर आत्मा सुख से भरा हुआ, माने वो चैतन्य रस से भरा हुआ ये अभेद अखंड जो अपना आत्मा है वो अत्यंत परिपूर्ण है। क्या? वे अपने को साक्षात पुरुषाकार अनुभव कर रहा है। देखना, आंख बंद करके जब अपने स्वरूप को देखते हैं तो अपना स्वरूप कैसा दिखाई देता है? शरीर प्रमाण, असंख्यात प्रदेशी, चिन्ह मूरत, बिन मूरत, बिन मूरत होते हुए भी चिन्ह मूरत दिखाई दे रहा है। रूपवान न होते हुए, अरूपी होते हुए भी उस चैतन्य का रूप दिखाई दे रहा है। आत्म स्वरूप के बारे में विचार कर रहा है वो ज्ञानी व्यक्ति। एकांत में बैठकर देह देवल में विराजमान चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए उस चैतन्य को जिनवाणी में बतलाए गए स्वरूप के अनुसार विकल्पात्मक भूमिका में निर्णय कर रहा है। विकल्पात्मक भूमिका में निर्णय चल रहा है। साक्षात पुरुषाकार अनुभव कर रहा है अपने आप को। कैसा दिखाई देगा? वो आत्मा दिख रहा है। ज्ञान और आनंद समूह स्वरूप वो अपना आत्म तत्व यद्यपि अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, चरम चक्षुओं से दिखाई देने योग्य नहीं है, लेकिन ज्ञान नेत्रों से बराबर दिखाई देवे ऐसा आत्म स्वरूप है। चर्म से नहीं दिखाई देता, चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई देता, आईने में जो दिखाई देता है वैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन ज्ञान में दिखाई देने वाला वो रूप कुछ अलग ही प्रकार का है। कह दिया था ऊपर वाली लाइन में, देदीप्यमान दिखाई दे रहा है, शाश्वत दिखाई दे रहा है। चैतन्य धातु का पिंड है, रॉ मटेरियल कौन सा है? गोल्ड में दिखाई देता है या वो आत्म तत्व सिल्वर में दिखाई देता है? वो आत्म तत्व ये जो अग्नि की ज्योति होती है, अग्नि शिखाएं, इस तरह से दिखाई देता है, या फिर वो आत्म तत्व एक प्रकाश पुंज जैसा दिखाई देता है? कैसा दिखता है वो? कह रहे हैं यहाँ किस धातु का बना हुआ दिखाई देगा? सब सफेद सफेद दिखाई देता होगा। तो आत्मा कौन से रॉ मटेरियल का? लोह पुरुष जैसा, लोहे जैसा। आपने बनी है ना वहां कौन सी जगह वो मूर्ति 108 फीट की, किसकी है? सरदार पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनी है, काई की बनी है? बोले वो जो मूर्ति बनी है ना वो लोहे की बनी है। तो ऐसे ये जो चैतन्य मूर्ति दिखाई देती है ये कौन सी धातु से बना हुआ है? सब अष्ट धातु से बनी हुई प्रतिमा है। अच्छा, अष्ट धातु की
ये सोने की प्रतिमाएं, ये चांदी की प्रतिमाएं, ये कौन सा धातु यूज हुआ है? अरे भाई ये तो ये कह रहे हैं यहाँ चैतन्य धातु का पिंड है, अक्षय अनंत गुणों से युक्त चैतन्य देव ज्ञान का विषय बन रहा है। वो ज्ञानी पुरुष अपने आप को चैतन्य देव अनुभव करता है। हम आंखों से जैसा रूप बनाना चाहते हैं वैसा रूप नहीं बनेगा, क्योंकि वो ज्ञान का रूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक आत्मा है, वो कुछ अलग ही प्रकार का है। हमने जितने एग्जाम्पल कहे हैं अजय भैया, जितने एग्जाम्पल कहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल झूठे हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखता है, आंख नाक कान वाला नहीं दिखाई देता है, शरीर वाला नहीं दिखाई देता है, पूरा काला मोटा पतला नहीं दिखाई देता है। आंख बंद करके देखो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान को देखने का प्रयत्न करो, क्या दिखाई दे रहा है? आंख बंद करने पर आपको चैतन्य के नाम पर क्या दिखाई देता है? आप कहते हो ना आपने बहुत अध्ययन किया है, आप कहते हैं ना आपने बहुत अभ्यास किया है, क्या? हमने बहुत अध्ययन किया है, हमने बहुत अभ्यास किया है, हमने बहुत पढ़ा है, सीखा है, समझा है। इस चैतन्य तत्व की अनुभूति करने के लिए हमने आत्मा के स्वरूप को समय सार से पढ़ा है, नियम सार से पढ़ा है, प्रवचन सार से पढ़ा है, परमात्मा प्रकाश से पढ़ा है, योग सार से पढ़ा है, वृहद द्रव्य संग्रह से पढ़ा है। हमने इस आत्म तत्व को आपने पढ़ा है ना सोगानी जी भोपाल से। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप आंख बंद करते हैं तो आपको वो चैतन्य कैसा दिखाई देता है? देखो जरा, देखो देखो। आपने यदि गांधी जी के बारे में खूब पढ़ा हो, जैसे मुन्ना भाई ने पढ़ा था क्या, तो उसे सब जगह पर गांधी जी दिखने लगते थे, ऐसा होता था। मतलब जो जिस मतलब वो उस स्वरूप के साथ में इतने तादात्म्यपन की अनुभूति होती है, इतने तादात्म्यपन की अनुभूति कि उसे फिर वही वही दिखने लगता है, क्या उसकी फीलिंग में वही आने लगता है। अभी यदि आपने सच में किसी विषय को बहुत गहराई से यदि पढ़ा हो तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आपको वो फीलिंग में आ रहा है या नहीं? वो चैतन्य कैसा दिख रहा है, वो आत्मा कैसा दिख रहा है? ये कह रहे हैं हाँ, ज्ञान ज्योति को लिए हुए आनंद रस से परिपूर्ण दिखाई देता है। आत्म स्वरूप दैदिप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभावित होता है। देखा, प्रकट तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा अप्रकट है, थोड़ा छिपा हुआ है, क्या बड़ी प्रकट होता तो फिर ऐसे ऐसे दिखता। प्रकट को ऐसा समझता है जैसे सामने हो, क्या जैसे पुद्गल दिखाई दे रहा है ना, ऐसे जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है, जैसे हमें ये मोबाइल दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है ऐसा ऐसा दिखना चाहिए हमारे को, तो लगता है अब प्रकट दिखाई दिया, अब प्रकट दिखाई दिया हमारे को। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये आत्म तत्व की प्रकटता, अनुभव की प्रकटता की चर्चा चल रही है। साहब कैसे प्रकट हुआ, कैसे प्रकट होगा ये आत्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। ये आत्मा प्रकट तो नहीं है, प्रत्यक्ष कैसे होगा? आप कह रहे हो प्रत्यक्ष है, प्रकट है, लेकिन हमारा तो ज्ञान ही परोक्ष है। हमारे परोक्ष ज्ञान में वो आत्मा प्रत्यक्ष कैसे होगा? ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमारा ज्ञान परोक्ष है तो आत्मा प्रत्यक्ष कैसे होगा? अनुभव प्रत्यक्ष, बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा। आप जैसा प्रत्यक्ष समझ रहे हैं और आप जैसा प्रकट समझ रहे हैं, और वो प्रकट तो है, प्रकट तो है भाई साहब। मैंने समय सार जो 17वीं 18वीं गाथा के अंदर जो कहा, आबाल गोपाल सबको सहज सुलभ प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, बिल्कुल प्रकट दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सहज सबको चिन्मय अभिराम। क्या सुलभ, सबको सुलभ है ये चिन्मय अभिराम, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो ज्ञान ये क्या है भाई साहब? ज्ञान की तरंग जो उठ रही है, ये ज्ञान की उठने वाली तरंग में ये झलक रहे हैं, और जिसमें झलक रहे हैं वो नहीं झलक रहा है। ऐसा कैसे होगा? सोचना, विचार करना राजेंद्र बाबेन जी, विचार करना जरा इस संबंध में।
ज्ञान की जो तरंग उठी, ज्ञान की जो पर्याय उठी, उस ज्ञान की उठती हुई पर्याय में जब ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, तो ज्ञेय क्या ज्ञान से निरपेक्ष होते हैं? वो ज्ञान की पर्याय में ही तो झलक रहे हैं। तो ज्ञान की पर्याय के बिना ज्ञेय कैसे जानने में आएंगे? इसका मतलब ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान में जानने में आ ही रही है। ज्ञान के बिना ज्ञेय जानने में नहीं आ सकते। मैं आपसे कहता हूं, जब आप जाकर के दर्पण देखते हैं, जब आप जाकर के आईने के सामने खड़े होते हैं और उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो सच्चाई तो यही है कि वो जो चेहरा दिखाई दे रहा है, वो दर्पण को देखे बिना चेहरा नहीं दिख सकता है। ये बात अलग है कि आपके दिमाग में दर्पण नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में चेहरा ही आता है। क्या होता तो ऐसा ही है ना। जब आप आईने के सामने जाकर के खड़े होते हैं और आप इधर से देख रहे हैं, तो आप किसको देख रहे हैं? दर्पण को। देखा किसको है? दर्पण को। अब यदि दर्पण दिखे तो इसका मतलब है स्वरूप दिख रहा है, और दर्पण नहीं दिख करके यदि उसमें चेहरा दिखाई देवे, तो दर्पण के स्वरूप को छोड़कर झलकन को देख रहा है। हमारी स्थिति ऐसी है, ज्ञेय मुग्धता की स्थिति। ज्ञान में ज्ञान झलकने पर भी हम ज्ञान सामान्य को न देख करके ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के साथ में तादात्म्यपन की अनुभूति करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। ख्याल में आ रही है क्या बात क्या चल रही है? ये कह रहे हैं क्या दिख क्या रहा है और दिखना क्या चाहिए। अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, सबको ज्ञान पूर्वक ज्ञेय झलक रहे हैं। क्या क्या शब्द दिया मैंने? प्रवीण साहब चावड़ा, क्या कहा? ज्ञान पूर्वक ज्ञेय झलक रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान में ज्ञान को पकड़ने की चेष्टा कीजिए। ज्ञान में ज्ञेय तो पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान में ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा है। साहब दिख नहीं रहा है साहब, क्या करूं साहब? देखो देखो जरा, दिखेगा। ज्ञान पूर्वक ही तो ज्ञेय पकड़ में आएंगे। साहब दिखता नहीं है। अरे भाई दिखता तो है। ज्ञानियों को थोड़ा उपयोग की एकाग्रता करेगा तो तुझे बिल्कुल बराबर ख्याल में आएगा। और तू यदि ये कहता है कि नहीं दिख रहा है, तो फिर हम तो ये कहेंगे कि ऐसी बात मत कर, नहीं तो फिर उदाहरण गल्ला देना पड़ेगा। उल्लू को यदि सूर्य नहीं दिखता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? यदि उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई देवे, नहीं साहब सूर्य तो होता ही नहीं है, क्या क्या कहे सूर्य? तो उल्लू क्या कह रहा है? नहीं सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या उल्लुओं की मीटिंग हुई सबकी? सब लोग बैठे, बोले किसी ने सूर्य को देखा हो तो बताओ। क्या होता ही नहीं है? बोले हमने साहित्य में पढ़ा है। बोले पढ़ा है तब झूठ पढ़ा है। किसी ने प्रत्यक्ष देखा हो तो बताओ। सूर्य का अस्तित्व नहीं होता, सूर्य कहीं नहीं होता, ऐसा उन्होंने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई समझदार व्यक्ति उल्लुओं की उन बात को सुनकर के ये कहेगा कि नहीं दिखाई देता है, नहीं होता ही नहीं है। क्या? अरे भाई सूर्य तो प्रकट है, सूर्य तो प्रकाश पुंज है, सूर्य तो दैदीप्यमान है। क्या यदि कभी तुमने नहीं देखा तो इससे सूर्य के अस्तित्व का नकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही ज्ञान तो प्रकट प्रकाशमान है, ज्ञान तो दैदीप्यमान है, ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप है, या आत्म तत्व चैतन्य धातु का पिंड है, और अक्षय अनंत अनंत अक्षय गुणों से युक्त है। ये देव है भाई साहब। ये ज्ञानी जीव का चिंतन चल रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का। कौन से समय का चिंतन है? ये समाधि के काल का चिंतन है। समाधि में बैठा हुआ समाधिस्थ व्यक्ति, लेटा हुआ बिस्तरों में पड़ा हुआ, बिस्तर से उतर गया, चटाई पर लेटा हुआ, क्या लकड़ी के पाटे पर लेटा हुआ, समाधि मरण की तैयारी करता हुआ, अंत समय नजदीक आ गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन वो वीतरागी संतों का जवाब सुन रहा है। डॉक्टरों के जवाब की तरफ जिसका ध्यान नहीं है, जिसका ध्यान वीतरागी संतों के जवाब की तरफ है, हमें बढ़ जाते हैं दोनों। वीतरागी संत क्या कह रहे हैं, मुनिराज क्या कह रहे हैं, भावलिंगी संत क्या कह रहे हैं? ये वीतरागी दिगंबर भावलिंगी संतों के वचन किस प्रकार के हैं वो देख रहा है।
वो चिंतन कर रहा है बराबर बैठा बैठा, वो सोच रहा है अरे अरे ये जो बीमारी है ये बीमारी मेरी नहीं है, ये जो मरण होने वाला है ये मरण मेरा नहीं है, ये मरण किसका हो रहा है, ये मरण देह के वियोग का नाम है। जगत में 10 प्राणों के छूटने को मरण कहते हैं, लेकिन मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, मेरा मरण होता ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो अक्षय अनंत गुणों का स्वामी हूँ। ये जो शिथिलता दिखाई दे रही है, ये जो कमजोरी दिखाई दे रही है, ये जो वीकनेस दिखाई दे रही है, जो वजन कम हो गया है, ये वजन शरीर का कम हुआ है, मेरा तो वजन कम होता ही नहीं है। मेरा वजन कभी कम नहीं होता। कितना वजन कम हो गया, जैसा 15 किलो कम हो गया, 15 किलो कम हो गया। कितने समय में, पिछले 6 महीने में, कोरोना के बाद से 15 किलो वजन कम हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारा कितना घटा ये बतलाओ है? मेरा तो घटता ही नहीं है, मेरा तो घटता ही नहीं है। मैं वो हूँ जिसमें घटत बढ़त नहीं होती, वजन ही नहीं होता। वजन भूतल में होता है, चैतन्य में वजन नहीं होता, आत्मा में वजन नहीं होता। क्या कह रहे हैं ये बातें, कैसी कह रहे हैं? आनंद से परिपूर्ण तत्व है, साक्षात पुरुषाकार, अमूर्तिक, अरूपी। ये सब खाली खाली दिखाई देता है, आंख बंद करके देखते हैं तो अंधेरा अंधेरा दिखता है। मैंने कोशिश भी की थी पंडित जी आपके कहने के बारे में, मैंने कोशिश भी की थी उस आत्मा को देखने के लिए, मुझे बहुत अंधेरा अंधेरा सा महसूस हो रहा था। मुझे फीलिंग नहीं आ रहा था यार कुछ भी तो नहीं है यार, क्या है यार। लोग कहते हैं अंदर में देखो, अंदर में देखो, कहाँ कहाँ अंदर में देखूं, क्या कैसे कैसे देखूं उसको अंदर में? यहाँ से देखो, मुंह में से अंदर में देखो, एंडोस्कोपी करके, क्या कैमरा डाल दो यहाँ मुंह में से, एंडोस्कोपी कर दो डॉक्टर, यहाँ से कैमरा डाल देते हैं अंदर, अंदर डाल करके आओ आओ अंदर की फोटो लेकर के आओ। तो मैं तो देख नहीं पा रहा था, तो इन्होंने कहा अंदर देखना है, तो मैंने एक काम किया, एंडोस्कोपी करवा लेते। और जब वो वहां से उसकी पिक्चर्स आई तो देखा अंदर क्या है यार, अंदर बहुत गंदगी गंदगी, ये सब क्या पैसा पट्टे दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अंदर में। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखना था, कैमरा डाल करके नहीं देखना था, आंखें बंद करके देखना था। आंखें बंद करके देखा तो अंधेरा दिखाई देता, अब दिख ही नहीं रहा है, क्या करें? कह रहे भाई आगम के आधार से अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास पूर्वक दिखाई देती है ये चीजें, अनभ्यास के नहीं दिखाई देती है। अनुभव करने की यही विधि है, यही प्रक्रिया है। पुरुषाकार है, अमूर्तिक है, धातु माने रॉ मेटेरियल, चैतन्य का बना हुआ है, इसका मतलब प्रदेश प्रदेश ज्ञान से भरा पूरा है। क्या प्रदेश प्रदेश ज्ञान से भरा पूरा है? प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान व्याप्त है, प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण है, वो दिखेगा, वो धातु है, वो रॉ मेटेरियल है। ये आत्मा किससे बना हुआ है? बताओ आपकी टेबल किससे बनी हुई है? ये मंदिर किससे बना हुआ है? ईंटों से बना है क्या? पत्थरों से बना है क्या? नहीं, ईंटें तो नहीं है। सीमेंट बजरी बोले, सीमेंट तो नहीं है इसमें, क्या सीमेंट लगी है क्या इसमें? अपने इस मंदिर में सीमेंट तो नहीं है, तो किससे बना है ये? तो करते हैं ना कि किस चीज से बना है यार ये, बिना सीमेंट की इतनी मजबूती। तो ये देख रहे हैं, हाँ ये आत्म तत्व कौन सी धातु से बना है? बोले चैतन्य धातु से बना है। चैतन्य नाम की एक धातु, ज्ञान, ज्ञान का घन पिंड है, ज्ञान से बना हुआ है। अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव है, वो देव है, वो परमात्मा है। वही देव ही जानता है, देव ही जानता है। कौन जानता है? सम्यक ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष। कैसा जानता है? वह सम्यक दृष्टि पुरुष अपने आप को चैतन्य देव ही जानता है। बोले मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं देव हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ। क्या मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं गोरा काला नहीं हूँ, मैं चश्मे वाला नहीं हूँ, मैं कपड़े वाला नहीं हूँ, मैं ज्वेलरी वाला नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? बोले मैं संसारी नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ? चैतन्य देव हूँ मैं। वाह, अपने आप को देव अनुभव कर रहा है, अपने आप को परमात्मा अनुभव कर रहा है। उसके अतिशय से ही वह पर द्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। क्या पर द्रव्य के साथ में वो रागी नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे पर द्रव्य दिखाई नहीं देता, वो पर का लक्ष्य नहीं करता, वो पर की तरफ देखता नहीं है।
नीरज जी साहब, पर की तरफ देखना नहीं है। क्या मैं क्या देखूं? बाहर में देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। देख अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप को वो देखता रहता है, देखने का प्रयत्न भी करता रहता है, देखता भी रहता है। जब अपने स्वरूप को वो देखता है, अपने आप को जब वो ज्ञायक भाव अनुभव करता है, अपने आप को जब वो चैतन्य तत्व अनुभव करता है, अपने आप को जब वो त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है, अपने आप को जब वो परिपूर्ण अनुभव करता है, ओ क्या बात कही भाई साहब। जब वो अपने आप को चैतन्य तत्व परिपूर्ण अनुभव करता है, उसके अतिशय से ही परद्रव्य के प्रति राग रंच मात्र भी नहीं होता। परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। अरे पर के प्रति राग कैसे टूट गया ये बताओ तो सही। पर है तो राग कैसे टूट जाएगा? परिवार है तो राग कैसे नहीं होगा? सहयोग है तो राग कैसे नहीं होंगे? पंडित जी, जब तक शरीर रहेगा तो शरीर के प्रति राग तो रहेगा कि भाई, यही तो चमत्कार है। शरीर रहे और शरीर के प्रति राग टूट जाए, क्या ये दृष्टि का चमत्कार है? ये दृष्टि का चमत्कार है सच में। शरीर जो का क्यों रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं। शरीर से दुश्मनी थोड़ी है। एक मत बतलाया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, हार पट्टी मत कह करके पुकारा था, जिनमें गुरु अपने शिष्य को ये कहता है, मैं समाधि कर रहा हूँ, मैं समाधि में लीन हूँ, क्या मैं ध्यान और साधना में अपने स्वरूप में जा रहा हूँ। तुम्हें काम करना, पीछे से तलवार लेकर के मेरे सर का विदारण कर देना, दो टुकड़े कर देना। तो जिस तरह से घड़े में पैक बंद पक्षी घड़े के टूट जाने से मुक्त हो जाता है, इसी तरह से मैं साधना और ध्यान में हूँ, तुम शरीर का विदारण कर दो, मेरा चैतन्य मुक्त हो जाए। ऐसा ऐसा एक मत है, ऐसा एक संप्रदाय है इस प्रकार का। यहाँ ये कुछ कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है। ये चमत्कार कुछ अलग प्रकार का है। शरीर जैसे का तैसे बना रहे, शरीर बना रहने दो, देह की अवस्था जैसी है वैसी बने रहने दो, यहाँ कोई बात नहीं। लेकिन देह के प्रति यदि एकत्व बुद्धि बनी रहेगी तो काम नहीं आएगा, काम नहीं चलेगा। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है ना, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, तेरानी ना चरण मां ओ वंदन अगणित, ओ वंदन अगणित। योगेश जी साहब आगरा से, बोलो ये क्या कह रहे हैं? शरीर रहे कोई बात नहीं, है शरीर। अरे भाई देखो, राग रहते हुए, मिथ्यात्व रहते हुए सुख रंच मात्र भी नहीं, राग रहते हुए पूर्ण सुख की गारंटी नहीं, और मिथ्यात्व और राग के चले जाने पर शरीर के रहते हुए अनंत सुख हो सकता है, केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। ऐसा चमत्कार है। दृष्टि के चमत्कार की बात कर रहे हैं बाकलीवाल जी, माने ये दृष्टि के चमत्कार की बात है। ऐसा दृष्टि का चमत्कार होता है, रहने दो, शरीर गल रहा है गलने दो, शरीर सड़ रहा है सड़ने दो, शरीर विकृत हो गया है होने दो, शरीर को रोगों ने आकर के घेर लिया। अरे घेर क्या लिया है? रोगों की खाल है शरीर को, तन रोगों की खाल है। आप क्या सोच रहे हैं? होने दो जैसा हो रहा है। समाधि के काल का चिंतन है, अंतिम चिंतन है ये, समझ लीजिए आप। मैंने एक जो प्रवचन किया था ना, क्या करें अंत समय कोरोना में, क्या वो एक प्रवचन काफी लोगों ने देखा। मैं समझता हूँ कि 45-50 हजार से ज्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं, भविष्य में और लाखों लोग देखेंगे उसे। लेकिन उसमें जो बातें कही थी, सच में ऐसी बातें चर्चा में आई है जो आज कर रहा हूँ बातें, कि कुछ भी दूसरा दिखना नहीं चाहिए। अरे पंच परमेष्टि भी यदि दिख रहे हैं तो समझ लीजिए समाधि बिगड़ गई। क्या क्या कह रहे हो पंडित जी? अच्छी बात बोलो, आप कैसी बात कह रहे हो? अरे भाई क्या, यही तो बात है भाई साहब, ये बातें कभी सुनी नहीं होगी, ऐसी बातें हैं। यदि दृष्टि में पंच परमेष्टि भी आ गए तो काम नहीं होगा। अरे पंच परमेष्टि नहीं, पंचम पारिणामिक भाव दिखना चाहिए। पंच परमेष्टि भी पर है, पंच परमेष्टि भी पड़ोसी है, पंच परमेष्टि भी बाहर है, पंच परमेष्टि भी मेरे से भिन्न है। परमेष्टि नहीं, अंदर में बैठा हुआ परम इष्ट दिखना चाहिए।
राग का प्रतीक है सचिन जी, राग का प्रतीक है वो, जो दिखाई दे रहे हैं पंच परमेश की। हमें अनंत भगवान दिखाई दे रहे हैं, हमें सिद्ध भगवान दिखाई दे रहे हैं, हमें मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दृष्टि बाहर में है अभी। अरे आत्म देव दिखना चाहिए, अंदर का भगवान दिखना चाहिए। बाहर के देवताओं को तो अनेक बार देखा है, अनेक बार दर्शन किए हैं हमने। बाहर के देवताओं के तो अंदर के देवता के दर्शन करो एक बार। बाहर के परमात्माओं के दर्शन अनंत बार किए हैं, अंदर के परमात्मा के दर्शन करो। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर में, पर्याय भले ही पावर हूँ, अंदर से वैभववान हूँ मैं। समाधिस्थ है ना अभी, अंत समय शरीर शिथिल हो रहा है, शारीरिक शिथिलता बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन इस शारीरिक शिथिलता के काल में, शारीरिक कमजोरी के काल में उठ नहीं सकता है, इतना कमजोर है शरीर। हाथ उठाने को कहो तो हाथ नहीं उठ सकता है, ऐसी शारीरिक अवस्था है। हाँ, लेकिन उसके बाद 15 મિનિટ છે લગભગ. હા તો ચાલુ રાખવું છે કે પોઝ કરો નરેન્દ્ર. હા રજનીભાઈ મારું સંભળાય છે? હા બોલો બોલો. સંભળાય. મારે છે ને સ્ક્રીન ઉપરથી જતું રહ્યું છે બધું. પેલા નૈનાનો ફોન આવ્યો ને એટલે અત્યારે વાત સંભળાય છે એટલે બસ. અને આપણું પતી જાય ને પછી ઝૂમ માંથી નીકળી જવામાં મારે કઈ કરવાનું હોય કે ઝૂમ માં જતું નથી રહેતું એવું કોઈ વાર થાય છે? તમારે નૈનાનો ફોન આવેલો. નીતા શું નીતા તારું માઇક બંધ છે. હા તો અત્યારે છે ને માઇક બંધ હશે પણ કઈ દેખાતું નથી, આ ખાલી તમારું સંભળાય છે. અને એટલે હવે સમજો કે નવેસર થી મારે પેલું તમારું કરવું હોય ઝૂમ ચાલુ એવું કઈ થતું નથી અને તમારું આ સંભળાય છે. અચ્છા સંભળાય છે? સ્ક્રીન ટચ કરો તો આવે છે, સ્ક્રીન ટચ કરો તો કઈ આવે છે? હા કઈ નથી આવતું. શું કેમેરો કરું? બંધ હશે, કેમેરો બંધ થઈ ગયો છે. અત્યારે કેમેરા આપણને ઇન્દુબેન દેખાય છે અને હા. ઇન્દુબેન અવાજ સંભળાય છે, પણ હા. એમને કેમ નથી દેખાતું? પણ મારે તમારું આમાંથી જતું નથી રહેવાતું. પછી ઝૂમ માંથી બહાર નીકળવું હોય તો કેવી રીતે કરવાનું? અત્યારે તો તમારે ક્યારથી આવું થયું? ક્યારથી થયું? આ નૈનાનો ફોન આવ્યો ને એટલે મેં થોડું ફોન બંધ કરવા માટે જરા આગુ પાછું કઈ કર્યું તો ફોન ત્યાં સુધી રિંગ તો વાગ્યા કરી. અને પછી પણ અત્યારે છે ને તો તમારી સાથે વાત થાય છે પણ હવે મારે બંધ કરવું હશે તોય મને આવડતું નથી. ભલે તમારે કેટલી વાર પહેલા આવું થયું? કેટલી વાર પહેલા થયું આવું? આ ફોન આવ્યો ને હમણાં નૈનાનો કેટલી વાર થઈ? 10 મિનિટ થઈ. 10 મિનિટ? 5-7 મિનિટ થઈ એમ તો. પણ હવે મને શું છે એ નથી આવડતું કે ચાલે ઇન્દુબેન સ્તુતિ કરો. પાવન મધુર અદભુત હો ગુરુ વદનથી અમૃત જર્યા, શ્રવણો મળ્યા સદભાગ્યથી નિત્ય હો ચિદરસ ભર્યા. ગુરુદેવ તારણ હારથી આત્માર્થી ભવસાગર તર્યા, ગુણમૂર્તિના ગુણ ગણતણા સ્મરણો હૃદયમાં રમી રહ્યા. દ્રવ્ય સકલની સ્વતંત્રતા જગમાઈ ગજાવન હારા, નિરકથિત સ્વાત્માનુભૂતિનો પંથ પ્રકાશન હારા. ગુરુજી જન્મ તમારો રે જગતને આનંદ કરનારો, સ્વર્ણપુરે ધર્માયતનો સૌ ગુરુ ગુણ કીર્તન ગાતા. સ્થળ સ્થળમાં ભગવાન આત્મના, સ્થળ સ્થળમાં ભગવાન આત્મના ગણકારા સંભળાતા. કણ કણ પુરુષાર્થ પ્રેરે ગુરુજી,
આત્મ જવાળે કે કણ કણ પુરુષાર્થ પ્રે ગુરુજી આત્મ જવાળે निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी मात को वंदना सत बार है वंदना सत बार है जिनवाणी मातनो जय हो જય હો परमकारी श्री सदगुरु देवनो जय हो જય હો ओ प्रसमूर्ति भगवती मातनो जय हो सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो ઓકે આજે બધાને જય આપણે જિનેન્દ્ર. આપણે આજે